دیکھو انہیں یہ ہے اوس کی بوندیں، پتوں کی گود میں آسماں سے کودیں، انگڑائی لے پھر کروٹ بدل کر، نازک سے موتی ہنس دے پھسل کر، کھو نہ جائیں تارے زمین پر۔ یہ تو ہے سردی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از سما جمال اینڈ یو آر واچنگ مائی لائیو شو لائیو بیٹس۔ اینڈ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اہم گیسٹ میں نے لینے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ ہمارا رابطہ بحال رہے اور ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کر سکیں، کیونکہ ہم کل سے کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کو کرنے کی، لیکن ہمارا جنید سے رابطہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ یہ ہے کہ جنید ایک ریفیوجی کیمپ میں ہیں، بنگلہ دیش میں ریفیوجی کیمپ میں جنید رہ رہے ہیں، اور وہاں وہ جس طرح سے انہوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اٹ از انکریڈیبل اینڈ آئی سلیوٹ ہم کہ ہی از ورکنگ فار ریفیوجی کیمپ اینڈ فار ریفیوجیز، ہی از اے ہیومینیٹیرین۔ محمد جنید ایک روہنگیا کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایک ہیومینیٹیرین کے طور پر اپنی آواز روہنگیا کمیونٹی کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور ایک کیمپ میں رہتے ہوئے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں محمد جنید سے۔ السلام علیکم جنید۔ السلام علیکم۔ جنید وعلیکم السلام۔ جنید اپنا ذرا بریف تعارف کروائیے۔ First of all, I would like to thank for giving me this special opportunity to express the situation of Rohingya and the situation of the camp and also mine. Yes. And I'm really appreciated to meet you. So, میں اردو میں بات کر سکتے ہوں آپ سے؟ یس، آپ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اردو سمجھنے والے زیادہ ہیں۔ مجھے اردو میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے اردو میں، تو اس لیے میں اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے بہت ڈیٹیلی ہماری انٹروڈکشن کری، اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کو۔ یو آر ویلکم۔ آپ اپنے بارے میں مزید کچھ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں روہنگیا کیمپ میں، اور کس طرح کے حالات میں آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں۔ جی ہم یہاں 2017 میں آئے تھے بنگلہ دیش کیمپ میں، تو اس وقت میں پہلے ایک جی 2017 میں آ کر پہلے یہاں کچھ کام نہیں تھا، اس لیے میں یہاں آ کر ہم لوگ بہت تکلیف میں پھنس گئی، اور اس وقت کوئی یہاں ہیومینیٹیرین ایجنسی اور NGO وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک کام کیا۔ فارمیسی شاپ ہے نا یہاں کے لوکل فارمیسی شاپ ہے، وہاں میں کچھ مان میں کام کیا، 2-3 ماہ وہاں کام کیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں NGO آنے لگا، پھر وہاں ان لوگوں سے مل کر وہاں پہلے میں ایک ریلیف انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن تھا، یہاں آیا، وہ ان لوگوں سے ملا، تو پھر میں نے ایسے کیس ہوا کر میں وہاں کام کیا، اور وہاں 1 سال تک کیا۔ پھر 2019 میں نے وہاں اور بھی بہت سارے کام کیے، اور ہمارے جو روہنجا کے لیے بہت میں نے آواز اٹھائی تھی، اور یہاں کا ایک سول آرگنائزیشن ہے ہمارے روہنجا کیمپ میں، اس کا نام تھا ارکان روہنجا سوسائٹی فار پیس اینڈ ہیومن رائٹ،
वहाँ एक मैंने डाटा कलेक्टर तरफ से मैंने काम किया था वहाँ ऐसे डाटा कलेक्टर। तो फिर मैंने एक फाउंडेशन आया इंडिया से, उसका नाम था सलमा फाउंडेशन, वहाँ मैंने एज ए टीचर काम किया। फिर मैंने ब्रैक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। ब्रैक यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट आया, उसका नाम था CPJ सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस। वो लोगों की हक और इंसाफ के लिए काम करते हैं। तो फिर मैंने बहुत इंटरेस्ट लगा, इसलिए मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ मैंने बहुत पोजीशन में काम किया था, बहुत सारी प्रोजेक्ट आया था वहाँ। जैसा प्रोजेक्ट चेंज करता है वहाँ वैसा पोजीशन भी चेंज होती है। तो फिर अभी तक मैंने वहाँ काम करते आ रहा हूँ। लेकिन घर में एक प्राइवेट क्लास भी है, प्राइवेट क्लास भी चलाता हूँ। तो ये मैं यहाँ आकर काम किया मेरा। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने 2017 से अब तक आप एक्टिव रहे हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा काम किए। रोहिंग्या के लिए आप काफ़ी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइन बात है कि रोहिंग्या के लिए वहाँ के नौजवान ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कहा था कि रोहिंग्या कैंप की ज़िंदगी इस तरह से है कि जेल भी इससे बेहतर होगी। आखिर क्या वजह है कि अब तक सालों से हम देखते आ रहे हैं कि रोहिंग्या इस हालत में है? क्या वजह है कि अब तक बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं? हुकूक के लिए आवाज तो बुलंद करने वाले आ रहे हैं, हालात भी दिखाते हैं। रोहिंग्या कैंप के हालात इंटरनेशनली लोग जानते हैं कि क्या हालात हैं, लेकिन क्या वजूहात हायल हैं कि अब तक ये मसाइल हल होने की तरफ नहीं जा रहे? आपकी सवाल क्लियरली समझ नहीं पाई मैंने। मेरा सवाल है, दोबारा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि क्या वजूहात हैं कि अब तक इंटरनेशनली रिकग्नाइज होने के बावजूद रोहिंग्या का मसला हल नहीं हो रहा? क्या लोग उनके हक को तस्लीम नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? मुश्किलात क्या पेश आ रही है? मुश्किलात हमारी ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस बहुत बड़ा हुआ था। तो दुनिया सब जगह हमारी जो क्राइसिस है वो पहुंच गया। तो फिर इस यहाँ तक कि हम कोशिश करते रहते, हम लोगों की ये जो केस है ICC में भी पहुंच गया, और ICJ में और ICC में पहुंच गया। और वहाँ में हमारे लिए जो सोल्यूशन निकलते साथ और एक B2 कंट्री है ना, B2 कंट्री उसका नाम है चाइना भी एक B2 कंट्री है। वो एक B2 माल भी है हमारे ऊपर। वो क्योंकि ये एक मसला है, चाइना और हमारी जो बर्मा जो शहर है, वो दोनों एक है। वो पॉलिटिकली वो लोग एक काम करते हैं। चाइना भी हमारी जो देश से जो रिसोर्स निकलते हैं हमारे देश से, वो लेने के लिए वो तलाशता। तो अगर हमारे जो केस है वो अमेरिका और हर क्या कहते हैं, गैम्बिया और बहुत सारी देश है, और बांग्लादेश भी है हमारे साथ दे रही है और हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। लेकिन वहाँ अमेरिका और चाइना वो लोग चाइना और अमेरिका जो है वो दोनों तरफ लड़ाई का एक रास्ता है। और उन लोगों ने बहुत हंगामा भी किया देश की तरफ से। इसलिए जो हमारी जो केस हो जो अमेरिका सॉल्व करने के लिए स्टैंड हुआ, इसलिए चाइना उधर से चाइना क्या करते हैं, B2 मार देते हैं हमारे ऊपर। इसलिए हमारी जो केस है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। यानी कि दो मुल्कों की ताकत की लड़ाई में एक रोहिंग्या कौम सफर कर रही है।
दो मुल्कों की ताकत की लड़ाई के अंदर। अच्छा ये बताइए, आपको उर्दू बोलने में अभी मुझे लग रहा है काफी मुश्किल हो रही है, अगर आप किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप शायद ज्यादा बेहतर बता सके। ये बताइए आपको उर्दू किसने बोलना सिखाई? हेलो, जुनेद, उर्दू कहाँ से सीखी आपने? समझ नहीं आ रही है आपकी आवाज। फ्रॉम वेयर यू लर्न उर्दू? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अभी पूछे। जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, शायद आपको उर्दू बोलने में अभी थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि आपने उर्दू सीखी है माशाल्लाह, लेकिन आपको उर्दू बोलने में अभी भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहें तो आप इंग्लिश में बात कर लीजिए। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने एक लीडर के बारे में बताया था, एक जूइश लीडर के बारे में, जो आपके हक के लिए काफी ज्यादा आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप जरा उनका तारुफ हमसे तफसीली करवाइए कि वो क्या कर रहे हैं रोहिंग्या कौम के लिए। फिर से क्या होगा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज काट कर आ रही है। यहाँ नेटवर्क भी अच्छी है। चले मैं बताते चलूं नाजरीन को जो भी देख रहे हैं कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि वहाँ लैपटॉप यूज करने की इजाजत नहीं है, इन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम स्पीच नहीं है और बहुत ही नामुसाइद हालात में ये लोग वहाँ रह रहे हैं। इसीलिए इनका इंटरनेट प्रॉब्लम्स भी हैं और हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से कम्युनिकेशन होनी चाहिए दो ममालिक के दरमियान। एक कैंप के इन्होंने बताया कि यहाँ शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप मैं जिस भी जगह को ज्वाइन कर लूँ आपसे बात करने के लिए, आपको शोर ऐसा ही मिलेगा क्योंकि ये बाजार की तरह का माहौल है। एक कमरे के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा शोर मिलेगा मैं जिस भी जगह को ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि हम एक कैंप के अंदर हैं तो कैंप के हालात हम समझ सकते हैं कि किस तरह हो सकते हैं। तो जुनेद, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त किन लीडर्स को आप समझते हैं कि वो रोहिंग्या की आवाज ज्यादा इंटरनेशनली अच्छी उठा रहे हैं? आपने एक तारुफ करवाया था अपने एक लीडर का जिन्हें आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, जरा उनका तफसीली तारुफ करवाइए हमसे। कैंप की हालत पूछा आपने? जी, कैंप की हालत बताइए, आप जो आपको समझ आ रहा है आप वो बताइए ताकि हम प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, कैंप की हालत तो यहाँ बहुत एक्सप्लॉट है कैंप। हमारी जो ये बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, पहले तो हम लोग उनका शुक्रिया अदा कर नहीं पाऊंगी। जो कहते हैं ना, एक तरफ माँ का खीर का दूध जो गुण है वो अदा नहीं कर पाते, दूसरी तरफ हम रोहिंग्या बांग्लादेश का जो उन लोगों का जो मदद है, उन लोगों ने जैसे जितना हमारे ऊपर जो कुछ किया उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन लोगों यहाँ की गवर्नमेंट और यूएनएचसीआर ने हमारे को अभी तक एस रिफ्यूजी रजिस्टर नहीं किया। हमारे को अभी रजिस्टर किया एस फोर्सिबली डिस्प्लेस पर्सन। फोर्सिबली डिस्प्लेस पर्सन का मतलब ये होते है, अगर कोई लोग हम लोग अगर किसी जगह में किसी शहर में रहते हैं, वहाँ अगर आगुन में कुछ हादसा हुआ या और पानी उठा हुआ और बोयार हवा ज्यादा हुआ, इसलिए जो स्टॉर्म हुआ, साइक्लोन हुआ, इसी तरह कुछ हादसा हुआ, इसलिए उन लोग उस वजह से अगर कुछ लोग कुछ जगह में आबाद हुआ इमरजेंसी, तो इसलिए उन लोगों को कहती है फोर्सिबली डिस्प्लेस पर्सन। किसी वजह से उन लोगों ने इमरजेंसी सहारा लिया। जी। तो इसका जैसे जैसे उस जगह का हालत ठीक होती है वैसे उन लोगों को जाना पड़ता है।
तो जी इसी तरह हमारे को यहाँ रिफ्यूजी की तरफ रिफ्यूजी रजिस्टर नहीं किया है, ऐसे रिफ्यूजी हमारे को रजिस्टर किया डिस्प्लेस पर्सन, सो दैट हमारी जो राइट है रिफ्यूजी राइट है हम लोगों को हम नहीं मिल। हम देखते हैं कि दौरे हाजिर में इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें बन गई हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हम रेफ्यूजी कैंप को विजिट करके इंटरनेशनली देख सकते हैं। यूट्यूब पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से रेफ्यूजी कैंप की ज़िंदगी है, और जुनैद भी हमें यही बात बता रहे हैं कि अभी तक उन्हें एज ए रेफ्यूजी रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, और पोस्टली डिस्प्लेड पर्सन जिन्हें अपने मकाम पर जाना होगा जो ही हालात बेहतर होते हैं, लेकिन हालात कब बेहतर होते हैं इस बात का कोई तायुन नहीं कर सकता। जी जी कंटिन्यू कीजिए जुनैद। तो जी हम हमारी जो रिफ्यूजी राइट है, रिफ्यूजी का भी एक राइट होती है। रिफ्यूजी ऐसे नहीं रहती, रिफ्यूजी के लिए फ्रीडम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी रहती है, और राइट टू एक्सेस एजुकेशन, राइट टू रिफ्यूजी के लिए और एक अलग अलग राइट होती है। लेकिन हमारी यहाँ रहना और जो राइट है वो हमारी पर नहीं दे रही है, क्योंकि हम रोहिंग्या को अभी तक रिफ्यूजी रजिस्टर नहीं किया। इसलिए यहाँ हम लोग रह रही है और बहुत क्राउड है यहाँ, बहुत एक घर से दूसरे घर छूटा भी है यहाँ, और बहुत क्राउड भी है बहुत और ऐसे भी बहुत हादसा भी हुआ। आगुन से जलकर बहुत सारे लोग भी यहाँ कुछ मान पहले रोजा में हुआ था। रोजा की बहुत सारी ये एक पहला इंसिडेंट है वाल रिकॉर्ड हुआ ये इंसिडेंट, अभी तक कहीं भी नहीं। क्योंकि आगुन के इंसिडेंट में बहुत सारे लोग जलकर राख भी हो गया, और लोग भी जो आगुन पे जलकर राख हुआ, जो मकान भी लगभग 7 साल यहाँ, क्योंकि ये एक घर दूसरे घर से बहुत करीब है, और ये और बहुत सारी इंसिडेंट यहाँ होती है। अगर बारिश होती है, बारिश ज्यादा होता तो ऊपर से जो पहाड़ नीचे आकर बहुत सारे लोग वो इसी वजह से मर जाते हैं। और बहुत सारी यहाँ इंसिडेंट होती है। यहाँ की हालत कहूँगी तो हम जेल में भी हम लोग बहुत सेफ रहते हैं जेल में, तो जेल से भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ रहना। यहाँ बच्चों की हालत देखो तो बहुत रोता हूँ, क्योंकि ये हमारी जो बच्चे जनरेशन अभी उठ रही है वो उनका हालत क्या होगा ये भी नहीं पता है। उन लोगों के लिए कोई एजुकेशन के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और जो है वो जस्ट एक फ्रेंडली स्पेस है, चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस है। वहाँ जितना बच्चे नहीं है इतना यहाँ फ्रेंडली स्पेस है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जी यकीनन आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और मैं समझ भी सकती हूँ, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम अगर देखें तो हमें सबको मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए भी और उनके हक के लिए भी, कि इंसानियत वहाँ भी मौजूद है। जी कि इंसानियत वहाँ भी मौजूद है। जी इस कोरोना वायरस के हालत में भी बहुत सारे लोग परेशान में पड़ गया, और हम लोग बहुत डर गई थी। हमारी इतनी ज्यादा लोग एक जगह में थे। लोग तो बहुत
सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था जगह जगह में, लेकिन यहाँ कहीं भी जाओ आप, मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी नहीं है। रास्ता में अगर घर में जाओ तो घर में बैठे रहोगे तो घर में एक 10 हाथ है, एक घर बहुत छोटा होती है, एक परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं रहने के लिए। जहाँ जुनैद का राब्ता मुनक़ता हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी जुनैद की बात आगे बढ़ाने की। कि जुनैद बता रहे हैं कि जब दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही थी, उस वक्त भी एक कैंप में बुरी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक घर के अंदर काफ़ी अफराद मौजूद थे और बुरी हालात में ये ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और दुनिया के चैम्पियंस, इंसाफ के चैम्पियंस इस तरफ नज़रसानी नहीं करते, इस तरफ नहीं देखते। आज के दौर में भी इंसानी हुकूक की ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जी जुनैद, आप मज़ीद बताइए कि आप इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? मुझे क्लियर नहीं हुआ, बस देखिए आपको कैसा हो रही है पता नहीं, मेरा आवाज़ आपको सुना आ रही है क्या? आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। मेरा सवाल ये है, आपसे सवाल नहीं है, बेसिकली मैं कहना चाहूँगी क्योंकि आपका और हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप कोई मैसेज दीजिए, इंटरनेशनल इदारों को कोई मैसेज दीजिए अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी रेफ्यूजी कैंप के लिए कोई मैसेज आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे आप रेफ्यूजी कैंप में रहने वालों की आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे इंटरनेशनल इदारों तक? नहीं आई आपको आवाज़? इट्स ओके, समझ नहीं आ रही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वी विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम। जब हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल होगा, हमारे साथ मोहम्मद जुनैद बांग्लादेश रेफ्यूजी कैंप से मौजूद हैं और मौजूद थे, और ही इज़ वर्किंग एज अ ह्यूमैनिटेरियन। ये अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो साल से, अभी हमने शुरू में डॉक्यूमेंट्री देखी कि एक सदी पर मुश्तमिल ये जद्दोजहद कर रहे हैं अपने हक के लिए, राइट फॉर लाइफ के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द इन्हें इनके हुकूक मिले, इंटरनेशनली इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये भी मखलूक खुदा हैं, इन्हें भी इंसान होने का हक दिया जाए और इनकी दादरसी की जाए। जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो देखें, तो उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें हर कौम को अपने साथ लेकर चलना है और हर कौम को राइट ऑफ लाइफ देने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे अफसोस हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं रह सका, लेकिन बहुत शुक्रिया हमसे राब्ता करने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।